पवित्र दिन है। श्रील प्रभुपाद हमारे फादर हैं। अगर स्पिरिचुअल फादर तो हमारे मदर हैं इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सचिनंदन गौरपू मेरे साथ हैं, मेरा गला ही बैठा हुआ है और सचिनंदन गौरपू आए तो इनका फायदा भी उठाएंगे हम। तो ही विल सिंग द सॉन्ग यदि प्रभुपाद न होई तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ प्रभुज में कुछ माता जी में। ओके प्रभु जी बोल रहे, पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसका, उसके बाद फिर गाएंगे। तो ये हिज होलीनेस जयप्रताका स्वामी महाराज द्वारा रचित है। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो। If Srila Prabhupada had not come, what would have happened? How could we have passed our lives? Who else would have distributed the unlimited mercy of Lord Nityananda and Lord Gauranga all over the world? Which other compassionate person would have endeavored to deliver the miscreants, sinful, impersonalistic and voidistic people in the West? Who else would have come to distribute Harinam to them? Who else would have come forward to transform them into civilized beings? Who else would have taught them how to worship the deity form of Lord Hari day and night with Arti Kirtan, and how to conduct the Rath Yatra and other grand festivals? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrit contain the essence of the nectarian mellows of love of Godhead. Who else would have explained the scriptures so clearly and beautifully? Who else would have tolerated all difficulties and distributed Harinam with a pleasant heart? Who would have given us the dhamas such as Mayapur, Vrindavan and Jagannath Puri? The teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu constitute the greatest and most auspicious treasure. Who else would have engaged us in constantly practicing and preaching it? Sri Nitai Gaur and our desired trees of love of Godhead, desiring a drop of their mercy, Jayapataka's heart, incessantly take shelter of your divine grace. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jodi Prabhupada na hoito, tabe ki hoito, e jibano bohi to kishe. যদি প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো, এ জীবন বহিত কিসে। নিতাই গৌরের অপার করুণা কে দিত সকল দেশে। নিতাই গৌরে যদি প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো, এ জীবন বহিত কিসে। যদি প্রভুপাদ না হই পাশ্চাত্যের যত পাপী দুরাচারী, শূন্যবাদী মায়াবাদী। পাশ্চাত্যের যত পাপী দুরাচারী,
শূন্যবাদী মায়াবান, তাদের উদ্ধার করিবারে মন হেন কোন দয়ানিধি, ও তাদের উদ্ধার করিবারে মন হেন কোন দয়ানিধি। যদি প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো, এ জীবন বহিত কিসে। তাদের নিকটে কোন জন আসি বিলাইত হরিনাম, তাদের নিকটে কোন জন আসি বিলাইত হরিনাম। সভ্য জীবে রূপে গড়িতে তাদেরও কেহ হইতো অজ্ঞান, সভ্য জীব রূপে গড়িতে তাদেরও কেহ হইতো অজ্ঞান। যদি প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো, এ জীবন বহিত কিসে। যদি প্রভুপাদ না হইতো, দেশে দেশে হরি বিগ্রহ সেবা আরতি রাত্রি দিনে, দেশে দেশে হরি বিগ্রহ সেবা আরতি রাত্রি দিনে। রথযাত্রায় আদি মহোৎসব সব সব শিখাইত কোন জনে, রথযাত্রায় আদি মহোৎসব সব শিখাইত কোন জনে। যদি প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো, এ জীবন বহিত কিসে। যদি প্রভুপাদ না হইতো, গীতা ভাগবত চৈতন্য চরিত প্রেমামৃত রসসার, গীতা ভাগবত চৈতন্য চরিত প্রেমামৃত রসসার। কত না সুন্দর সরল করিয়া কে বুঝাই তোয়ার, কত না সুন্দর সরল করিয়া কে বুঝাই তোয়ার। যদি প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো, এ জীবন বহিত কিসে। কত কষ্ট সহি প্রীত মনে রহি, কে বাদিত হরিনাম। কত কষ্ট সহি প্রীত মনে রহি, কে দিত মোদের পুরী বৃন্দাবন মায়াপুর মত ধাম। কে দিত মোদের পুরী বৃন্দাবন মায়াপুর মত ধাম। যদি প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো, এ জীবন বহিত কিসে। পরম মঙ্গল শ্রী চৈতন্য, পরম মঙ্গল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাধন। পরম মঙ্গল
আচারে প্রচারে সদা আমাদের কে করিত নিয়োজন। আচারে প্রচারে সদায় আমাদের কে করিত নিয়োজন। যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত এ জীবন বহিত কিসে। যদি প্রেম কল্পতরু নিতাই গৌরের কৃপা কর্ণ লোভিবারে। প্রেম কল্পতরু নিতাই গৌরের কৃপা কর্ণ লোভিবারে। নিরবধি জয় পতাকা হৃদয়ে তোমারে শরণ করে। ও নীরব দিজয় পতাকা হৃদয়ে তোমারে শরণ করে। যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত এ জীবন বহিত কিসে। ও নিতাই গৌরের অপার করুণা কে দিত সকল দেশে। নিতাই গৌরে জয় প্রভুপাদা 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 জয় প্রভুপাদা। গুরুদেব 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 জয় গুরুদেব। हरे कृष्णा। जय ओम श्रीपाद परमहंस परिवज्रकाचार्य अश्वथ शिष्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबी फाउंडर आचार्य सिर द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम श्रीपाद परमहंस परिवज्रकाचार्य अश्वथ शिष्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जाए। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जाए। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जाए। श्री श्री राधा पार्थ तीर्थ विशाखा देवी की जाए। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जाए। श्री श्री गौरनिताय की जाए। प्रहलाद नरसिंह देव की जाए। इस्कॉन 51st इनॉग्रेशन एनिवर्सरी की जाए। इस्कॉन स्थापना दिवस की जाए। समस्त एकत्रित भक्त वृंद की जाए। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। ऑल ग्लोरीज श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नमो श्रीपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, ना सिर्फ हम इस्कॉन डिवोटीज के लिए और ना सिर्फ गौड़ीय वैष्णवों के लिए, बल्कि अभी तक के जितना मानव समाज का जो इतिहास है, स्पेशली अगर हम कलयुग की बात करें अगर, तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कलयुग में। इस्कॉन का एस्टेब्लिशमेंट जो है ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो इस्कॉन जो है एक इंस्टीट्यूशन हम सभी जानते हैं, और इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। तो इसको इंस्टीट्यूशन के तौर पे एस्टैब्लिश किया। हालांकि हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं की, 6 गोस्वामीज ने कोई इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं की, लेकिन उसके बाद जब आचार्य आए तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश की गौड़ी मठ के नाम से। उसके पहले कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थी। उससे पहले श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत प्रचार किया, हालांकि 500 नाम हट्टा प्रोग्राम शुरू किए श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, लेकिन उसको और ज्यादा सिस्टमैटिक करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने शुरू किया गौड़ी मठ को, और गौड़ी मठ के बाद फिर एक और प्रोटोटाइप ऑर्गेनाइजेशन खोली गई, उसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज। और फाइनली फिर जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉन्ग लास्टिंग होने वाली थी, उसका नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। इस्कॉन। तो कभी कभी बात आती है कि ये क्या भक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज करना ठीक है? क्योंकि भक्ति क्या है, तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इनको बहने दो, इनको रूल्स रेगुलेशन से मत बांधो, इनको बहने दो, ये इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, ऐसे ऐसे शोषण मत करो इनको रूल में डाल करके, इतने बजे ही उठना है, इतनी माला ही करनी है। प्लीज, अगर कभी नहीं उठने का मन किया, इट्स फाइन। अगर कभी किया तो हमने 64 माला भी की, और मान लो कभी किया नहीं हुआ, अगर नहीं भी हुई, दैट्स ओके, टेक अ चिल पिल। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में बांधना, ऐसे भक्ति को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट गुड। तो कई लोगों को लगता है कि भक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज करना स्पेशली कलयुग में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसके फायदे को जो है हम एक्रोनिम के तौर पे लेंगे, फायदा, FAYDA, फायदा। सो F फॉर फ्यूचर सिक्योर्ड। फ्यूचर जो है, भविष्य है हमारा, सिक्योर हो जाता है। किस प्रकार से सिक्योर हो जाता है? क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी फाउंडर आए, जब फाउंडर आते हैं तो उनके आने पे तो बड़ी चहल पहल होती है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो चहल पहल भी उनके साथ चली जाती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट जो कि 10,000 साल तक के लिए चलनी है, अगर ये हरे कृष्णा मूवमेंट अगर ये चलती रहे, तो इसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर 10,000 साल चलनी है, तो एक हमारे इस्कॉन में एक सन्यासी बता रहे थे, ये 10,000 साल बाद कैसे चलेगी? ये ऐसे चलेगी कि ये 10,000 साल का समय अगर, तो अभी इसकी शुरुआत है, चैतन्य महापुरुष से इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो 500 साल तो बीत चुके हैं, अभी 9,500 साल और बाकी हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी, अभी बढ़ेगी। जब 5,000 साल बीत जाएंगे तो दुनिया की 99% पॉपुलेशन गौड़ीय वैष्णव होगी, और फिर उससे अगले आने वाले जो 5,000 साल है, उससे फिर धीरे धीरे करके नीचे की ओर जाएगी। इस तरह से 5,000 साल और 5,000 साल, तो पीक पे जाना और पीक से फिर धीरे धीरे करके नीचे आना। इस तरह से 10,000 साल बीतने वाले हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, अभी तो अच्छा समय है, अभी तो ऊपर ही जानी है ये। अभी ये जो यंत्र युग चल रहा है, इसके जो टायर पंचर होंगे, तो उसके बाद अगला युग आएगा मंत्र युग, हरे कृष्ण महामंत्र युग। तो इसीलिए द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। लेकिन फ्यूचर सिक्योर कैसे होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। तो F फॉर फ्यूचर सिक्योर, A फॉर एसोसिएशन एवरीवेयर। सब, और अगर हमें साधु संघ को फैलाना है तो हमें इंस्टीट्यूशन उसके लिए चाहिए। प्रभुपाद जैसे लिखते हैं कि नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि हमने अपने इस्कॉन टेंपल इसलिए खोले हैं ताकि लोगों को ये मौका मिल सके कि लोग जा करके हरि के भक्तों का संग कर सकें। इसीलिए हम लोग अपने जितने सेंटर खोलते हैं वहां खोलते हैं जहां पर कि लोग रहते हैं, क्योंकि जहां कस्टमर बेस होता है वहीं पर तो कस्टमर केयर सेंटर बनाया जाता है कि नहीं? जैसे हमको अब रशिया में, साइबेरिया में हमको जमीन दे दी, कहती है आप यहाँ एक भव्य मंदिर बनाइए, और ये जो भालू हैं इनको प्रचार करिए आप। लेकिन भक्त डिटरमिनेट थे, नहीं हमको मॉस्को में ही जमीन चाहिए। तो आज भी वो संघर्ष चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। लेकिन रशिया महाराज श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा कि इंडिया से अच्छा ही चल रहा है, इंडिया के बराबर होगा उससे अच्छा ही होगा, पर रशिया इज गोइंग अमेजिंग।
रशिया है, ऋषियों का देश है. So that way it is going very good. So एसोसिएशन एवरीवेयर. तो लेकिन हम वहीं पर सेंटर खोलते हैं जहां पर लोग रहते हैं. कस्टमर केयर सेंटर वहीं खुलता है जहां कस्टमर होते हैं. कस्टमर का मतलब क्या है? कष्ट में मरने वाला. वेरी गुड, यस. जो कष्टों में मर रहे हैं उनको बोलते हैं कस्टमर. तो कस्टमर केयर सेंटर कहां खुलेंगे? अरे वहां खुलेंगे जहां कस्टमर मर रहे हैं बेचारे कष्टों में. तो इसीलिए हमारे कस्टमर केयर सेंटर है हमारे इस्कॉन टेम्पल्स. तो एसोसिएशन एवरीवेयर. पहले डिवोटीज कोई बाहर जाया करते सोचते वहां भक्त मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन इस समय चाइना में ही 10,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं. और ऐसे हरे कृष्णा डिवोटीज हैं ये, जब ये क्लास सुनते हैं तो आंख ऐसे खोल के सुनते हैं और आगे झुक करके सुनते हैं. जैसे हम थोड़ा पीछे होकर के आंख बंद करके सुनते हैं, वो थोड़ा सा ऑपोजिट है उनका. आगे होकर आंख खोल के सुनते हैं. वो जब वो डांस करते हैं तो जमीन पे कम होते हैं, हवा में ज्यादा होते हैं. ये हमारे चाइना के डिवोटीज. तो इसीलिए हमें अगर वहां भी संग करना हो तो वहां पर और बहुत जबरदस्त डिवोटी है. मैं एक चाइना के डिवोटी से मिला था, उसने 16 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ा हुआ है, 21 बार चैतन्य चरितामृत, 108 बार भगवद गीता. जो होता हम सबने मिलकर पढ़ी हो शायद, राइट. ये लोग इतना घमासान डिवोटीज हैं. तो इसीलिए अगर संगति चारों और एसोसिएशन एवरीवेयर, इट इज ओनली पॉसिबल बाय हैविंग एन इंस्टीट्यूशन. ओके, सो एफ फॉर future secured, A for association everywhere, Y for युग धर्म प्रोपेगेंडा. अगर युग धर्म का प्रोपेगेंडा अगर होना है तो वो इंस्टीट्यूशन के ही थ्रू हो सकता है. ये तो फाउंडर होते हैं, प्रोपेगेंडा होता है, फाउंडर जाते हैं, प्रोपेगेंडा भी बंद हो जाता है. लेकिन प्रभुपाद जी ने इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश की तो इसके थ्रू अभी प्रोपेगेंडा जो बहुत इंटेंसली आगे से बढ़ रहा है. हमारे एक डोनर है, ही गिव्स अस 1 लाख रुपीज एवरी मंथ. तो उन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया हमको. He said कि ना मेरे पास और भी कई लोग डोनेशन लेने के लिए आते हैं, पर मैं सबसे ज्यादा डोनेशन इस्कॉन को क्यों देता हूं? वो मैं इसलिए देता हूं क्योंकि ये मेरा मानना है कि जितने भी और लोग हैं सबकी अपनी दुकानदारी है, लेकिन इस्कॉन इज दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो सनातन धर्म, हमारा जो ओरिजिनल धर्म है सनातन धर्म, और इस कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन, इसका जेन्युइनली 24 कैरेट खालिस गोल्ड के रूप में प्रचार कर रही है अगर, तो इकलौती ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इस्कॉन. और ये थर्ड पार्टी व्यक्ति है, कोई इस्कॉन डिवोटी नहीं है, ही जस्ट अ डोनर. पर उसके पास कई लोग आते हैं दान मांगने के लिए. तो इसीलिए अगर प्रचार प्रसार को अगर आगे बढ़ाना है तो इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है. सो वाई फॉर युग धर्मा प्रोपेगेंडा. डी फॉर डिविएशंस कर्टेल्ड. पीएचडी की हुई है हम कलयुग वालों ने किस तरह से भटकना है, हर सही रास्ते से भटक करके गलत रास्ता कैसे चुनना है इन अ वेरी इनोवेटिव स्टाइल, उसमें हमने पीएचडी की हुई है. तो इसीलिए इस्कॉन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच ऑलवेज देयर टू कर्टेल द डिविएशंस. कर्टेल द डिविएशंस. या अगर कोई डिविएशन मानना चाहे कि ओके प्रभुपाद इज द लास्ट एंड फाइनल दीक्षा गुरु, इसके बाद से और कोई दीक्षा गुरु नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी इतने कमजोर आचार्य थे कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि एक और आचार्य पैदा कर सकते. तो ऐसे डिविएंट मायावादी सिद्धांत जो लोग फॉलो करते हैं, कर्टेल्ड. अगर प्रभुपाद जी किसी ने भगवान मान लिया, इट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन. प्रभुपाद ने नो दे कैन बी आस्क्ड टू लीव इस्कॉन. ऐसे डिवोटीज भी थे प्रभुपाद जी के समय में. तो लेकिन जब इंस्टीट्यूशन होती है तो हमेशा डिविएशंस को कर्टेल किया जा सकता है, राइट. जैसे कि एक रिवर बेड होता है, अगर रिवर बेड अगर होता है तो नदी जो है समुद्र से मिल पाती है. अगर रिवर बेड ना हो तो समुद्र से नदी नहीं मिल पाएगी. जैसे अगर रिवर बेड ना हो तो नदी क्या है, थोड़ी सी यहां फैल जाएगी, थोड़ी सी यहां फैल जाएगी, थोड़ी सी आगे फैल जाएगी, ऐसे फैलते फूलते फिर वो फैल जाएगी, रायता फैल जाएगा, लेकिन वो कोई मिल नहीं पाएगी समुद्र से. यहां तो हो नदी में इतना बहाव हो, इतना तीव्र बहाव हो कि उसको रिवर बेड की जरूरत नहीं है, तब तो समुद्र से हो सकता है मिल जाए. लेकिन वैसे अगर रिवर बेड ना हो तो इधर उधर तितर बितर हो जाएगी, थोड़े मैदान में फैल जाएगी, थोड़ी थोड़ी अपना दिल्ली में आ जाएगी, थोड़े ऐसे फैलते फूलते नदी खत्म. तो रिवर बेड के होने से क्या होता है, नदी को रास्ता मिलता है कि नदी ना यहां से यहां जाएगी, ना बैंक के इस किनारे से इस किनारे जाएगी, वो सिर्फ बहेगी और समुद्र से मिलेगी. उसी तरह से हमारी भी डिविएशंस कर्टेल हो जाती है जब इंस्टीट्यूशन आती है. तो हम अपने मन चाहे तरीके से कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पर हर एक चीज को करने का एक तरीका है, राइट. जैसे भगवान को भोग लगाने का एक तरीका है यहाँ पर, एंड दैट वी लर्न. बाहर कई लोग हैं वो भोग लगाते हैं अपने स्टाइल में लगाते हैं. आओ भोग लगाओ मोरे श्याम जी श्याम जी श्याम जी, भोग लग जाए. मैं बाहर तो एक व्यक्ति से मिला था तो उनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं,
मैं कहा आपके घर में लड्डू गोपाल जी कहते हैं हाँ हमारे घर लड्डू गोपाल जी। मैं फिर तो आप तो सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते होगे भाई। कहते हैं रूल रेगुलेशन मतलब? मैं कहा 4 नियम जो होते हैं 4 नियम। क्या 4 नियम कौन से वाले? आपको मैंने बताया ओके नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। अच्छा मैंने कहा विच आल्सो इंक्लूड्स अनियन गार्लिक, प्याज लहसुन तो नहीं बनाते ना? कहते नहीं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा गोपाल बड़ा हो गया सब खाता है अब वो। अरे साहब बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, गोपाल बड़ा हो गया तो सब खा लेता है। तो डिविएशंस को कर्टेल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना बड़ा जरूरी है भाई, नहीं तो कोई क्या कैसे क्या करेगा। ओ माय गॉड, अरे बाबा। So D for deviations are curtailed. A for alert, accomplished साधना। हमारे इस्कॉन की बहुत बड़ी ताकत है हम भक्तों की मॉर्निंग की साधना। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज से पूछा कि महाराज यू आर सो सक्सेसफुल एज अ गुरु, यू आर सो सक्सेसफुल एज अ जीबीसी, यू आर सो सक्सेसफुल एज अ डिवोटी, यू आर सो सक्सेसफुल, आपकी सक्सेस का राज क्या है? तो महाराज ने कहा आई ऑलवेज अवॉइडेड वैष्णव अपराध एंड सेकेंड इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग साधना। मैं हमेशा वैष्णव अपराध से बचता हूं, वैष्णव की निंदा से बचता हूं, और दूसरा अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग प्रोग्राम। महाराज का मतलब ऐसा हाल है कि मतलब महाराज 12:30-1 बजे भी अगर पहुंचते हैं तो 2 बजे उठ जाते, कहते हैं वो मेरे कपड़े तैयार कर दो, वो जाना है मंगल आरती के लिए। सेक्रेटरी ने महाराज अभी तो 2 ही बज रहे। अच्छा ओके, देन महाराज जो है महाराज विल टेक रेस्ट अगेन, ही विल गेट अ बेड। फिर 2:30 बजे उठ जाएंगे, कहते हैं वो मेरे कपड़े वगैरह सब तैयार रखना, अभी मंगला का महाराज अभी तो 2:30 बजे। बिकॉज ही इज सो कॉन्शियस अबाउट मॉर्निंग प्रोग्राम। और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वैष्णविज्म में है, पर क्योंकि इस तरह का मॉर्निंग प्रोग्राम का पैटर्न, गुरु अष्टकम के उसमें जो है तुलसी आरती भी है, जपा भी है, जपा के बाद फिर गुरु पूजा है, फिर भागवतम क्लास है, प्रसादम है, इस तरह का स्ट्रिक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम, एक टेम्पलेट जो बनी हुई है, ये शक्ति है हमारी, वास्तव में ये शक्ति है। एक बार श्री प्रभुपाद के पास एक शिष्य आया, उसने बोला कि श्री प्रभुपाद मेरे में पवित्रता नहीं आ पा रही है, आप मुझको पवित्र करने के लिए एक कठिन स्थान पे प्रचार करने के लिए मेरे को भेज दीजिए, आप मेरे को चाइना भेज दीजिए, आप मेरे को मंगोलिया भेज दीजिए, आप मेरे को नॉर्थ कोरिया भेज दीजिए, आप मेरे को कहीं ना कहीं भेज दीजिए, कठिन स्थान में मेरे को भेजिए, कोई ऐसी चीज दीजिए जो कठिन सेवा हो ताकि मेरे में पवित्रता आए। श्री राधा पार्षद विशाखा देवी की जाए, श्री गौनिताय की जाए, श्री सीताराम लक्ष्मण जी की जाए, प्रहलाद नरसिंह देव की जाए, श्री प्रभुपाद की जाए। प्रभुपाद ने कहा मैं तुमको एक कठिन कार्य दूं जिससे तुम पवित्र हो। ठीक है, मंदिर का जो प्रोग्राम है ना, बस उसको एज इट इज पालन कर लो, ये कठिन काम तुमको मैं देता हूं। ये चाइना जाने से भी ज्यादा कठिन है, ये मंगोलिया जाने से भी ज्यादा कठिन है। ये जो है ना, सुबह उठ के नहा धो करके मंगल आरती टाइम से आना, क्लास में बैठना, नोट्स बनाना, ह्यूमिलिटी के साथ भक्तों में कोऑपरेट करके सेवा करना, अरे करके तो देखो, पता लगेगा कितनी शुद्धि होती है इसके अंदर। एंड यू रियली एक्सपीरियंस दिस। एक दिन आप करके देखिए, जो एक दिन का हमारा प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने सेट किया इस्कॉन के अंदर, मतलब दोपहर की 12 बजे की आरती भी, 4:15 बजे वाली आरती, फिर शाम को 6:30 वाली आरती, और रात को भगवद गीता सुन करके रात को दूध पी करके सोइए। जस्ट सी द मैजिक। हमने एक दिन किया था ऐसा, और फिर शाम को सारे हम इकट्ठा हुए थे सेमिनार हॉल में। तो सबसे एक्सपीरियंस लिया, तो आपको आज कैसा लग रहा है? तो सबने कहा वैसा लग रहा है ऐसे बब्बर शेर है, हमको कहीं भेज देंगे, हम वहां पर कुछ भी कराएंगे। ये हमारा जो साधना का जो प्रभुपाद जी ने पैटर्न बना के दिया, इसकी जो टेम्पलेट तैयार करके दी, बहुत बड़ी ताकत है ये हमारी इंस्टीट्यूशन की। तो इंस्टीट्यूशन जब आती है तो उनको फायदा ही फायदा होता है। एफ फॉर फ्यूचर, अरे एफ फॉर फायदा है, क्या बात है। एफ फॉर फ्यूचर सिक्योर्ड, ए फॉर एसोसिएशन एवरीवेयर, and then Y for Yug Dharma propaganda, D for deviations are curtailed, and A for alert accomplished sadhana, morning sadhana. In fact, Kripalu Maharaj से किसी ने पूछा था, Kripalu Maharaj is also outside, very successful Vaishnava outside, very learned, scholarly. उससे पूछा कि ये आप देखते हैं इस्कॉन बड़ा सक्सेसफुल है आजकल, इस्कॉन की सक्सेस का क्या कारण है? तो कृपालु महाराज जी ने कहा कि इनकी सक्सेस का कारण है इनकी अच्छी साधना, और दूसरा इनका जो अपने गुरु महाराज प्रभुपाद जी में जो उनकी फेथ है, ये तो इनके शक्ति के कारण है। जब तक ये 2 कार्य करते रहेंगे ना, ये लोग ऐसे ही फैलते रहेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। तो चाहे बाहर की इंस्टीट्यूशन भी हो, या बाहर कोई अगर पर्सनालिटीज भी हो, या फिर हम अंदर भी हम देखें अगर डिवोटीज की सीक्रेट अगर सक्सेस का, तो वो यही है हमारी मॉर्निंग साधना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फायदा जो है, फायदा ही फायदा है व्हेन वी हैव द इंस्टीट्यूशन। तो प्रभुपाद जी ने इंस्टीट्यूशन जब शुरू की, तो शुरू करने की बात आई थी,
तो उससे पहले प्रभुपाद जी ने हालांकि लीग ऑफ डिवोटी शुरू किया था, पर लीग ऑफ डिवोटी जो था वो एक तरह का प्रोटोटाइप था, जिससे प्रभुपाद जी को पता लग गया कि क्या चीज नहीं करनी चाहिए। उन्होंने काफी कुछ सीखा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गौड़िया मठ से ही, क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सीख करके उन्होंने ये सीखा है क्या करना चाहिए। और इस तरह श्रील प्रभुपाद जी ने उस प्रोटोटाइप ऑर्गेनाइजेशन जिसको गौड़िया मठ बोलते हैं, उस प्रोटोटाइप ऑर्गेनाइजेशन से सीखा है हमें क्या नहीं करना है, और फिर वो किया कि हमें क्या करना है। जैसे अगर कोई नक्शा वगैरह बनता है तो पहले उसका प्रोटोटाइप बनता है, कहते देखिए ये ना, ये ऐसे मंदिर ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे करके सीढ़ियां होंगी, ऐसे अंदर जाना होगा, ऐसे बाहर आना होगा, ऐसे ऐसे करके होगा। कहते अच्छा इसमें लेकिन टॉयलेट्स वगैरह कहाँ होंगे, कहते अच्छा वो है नहीं इसमें, तो पब्लिक टॉयलेट ही नहीं है इसमें, नहीं इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे। टेम्पल हॉल कितना, टेम्पल हॉल इतना नहीं, तो इसको थोड़ा बड़ा करिए ना, लाइक दैट। तो प्रोटोटाइप से क्या होता है, हम ये सीखते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गौड़िया मठ से जो है श्रील प्रभुपाद जी ने सीखा। गौड़िया मठ वाज नॉट मेंट फॉर प्रीचिंग, गौड़िया मठ एक प्रोटोटाइप था सिर्फ ये सीखने के लिए कि अब वास्तव में विश्वविख्यात अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें क्या क्या करना होगा। तो इसलिए ISKCON was meant to be the organization which was meant for worldwide propaganda of युग धर्म, of chanting of the holy names of the Lord. तो प्रभुपाद जी ने अब ये एस्टैब्लिश करनी थी, तो इसके लिए फिर प्रभुपाद जी के एक जान पहचान में एक व्यक्ति थे जिनका ना स्पिरिचुअल मूवमेंट से बड़ा रुचि थी, उनका नाम था राफेल। और राफेल चाहते थे कि ना मैं प्रभुपाद जी की मदद करूं कि किस तरह से हम एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन को लीगली एस्टैब्लिश करें, जो टैक्स फ्री होनी चाहिए, टैक्सेशन के उसमें एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, उसके अंदर लीगलाइज बननी चाहिए। तो उसके लिए फिर एक लॉयर की आवश्यकता थी। तो उसमें स्टीफन गोल्डस्मिथ नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अप्रोच किया, जो कि राफेल के दोस्त थे, काफी करीब मित्र थे। तो स्टीफन गोल्डस्मिथ को बड़ा बहुत रुचि थी आध्यात्मिक संस्थाओं में, और जब वो प्रभुपाद जी से मिले और उन्हें सारे मूवमेंट के बारे में जाना, वो उनकी इतनी रुचि बढ़ गई कि वो 26 सेकंड एवेन्यू में जाकर के श्रील प्रभुपाद जी से मिले, और वहां पर अपने दोनों बच्चों को भी लेकर के आए, और प्रभुपाद जी ने उनके बच्चों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ सूप बनाया था, वो पिलाया बच्चों को। बच्चे सूप पी करके बहुत खुश है कि ऐसा सूप तो हमने कभी नहीं पिया। और उसके बाद जो है फिर वो क्लासेस में भी आने लगे वहां पर, स्टीफन गोल्डस्मिथ, एंड ही वाज द ओनली वन जो क्लास में आते थे हु वाज नॉट अ हिप्पी, ही वाज अ लॉयर। और उनको बहुत इंटरेस्ट था प्रभुपाद जी क्लास में, जब भगवदगीता क्लासेस हुआ करती थी, ही वुड कम। तो फाइनली फिर आया दिन 13 जुलाई 1966। उस समय फिर श्रील प्रभुपाद जी स्टीफन गोल्डस्मिथ से साथ हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होनी है, तो फिर अच्छा इसमें ट्रस्टी कौन होंगे, विटनेस और ट्रस्टी वाला कौन होंगे। तो प्रभुपाद जी से पूछा, कहते आपकी जान पहचान में कोई होंगे है? फिर प्रभुपाद जी ने कहा यही है। कहते हैं बिल आ जाओ, तुम भी आ जाओ, राफेल तुम आ जाओ। ऐसे करके प्रभुपाद जी ने आसपास से पिक किए, राफेल तुम आ जाओ, डॉन, रॉय, मिस्टर ग्रीन, यू कैन कम। प्रभुपाद ने वहीं इकट्ठे किए थे, बस यही आई विटनेस, यही ट्रस्टी है, ठीक है, बस आएंगे, अनाउंस करने की जरूरत है वहीं पे, दैट्स इट। कहता अच्छा फिर सोसाइटी का नाम क्या रखा जाएगा? कहता है सोसाइटी का हम नाम रखेंगे ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर एक बात ये आई कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस कर दें तो कृष्णा बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, इट लुक लाइक हम लोग थोड़े सेक्टेरियन काइंड ऑफ लोग हैं जो कृष्णा करने वाले हैं। इसकी जगह ना बोला स्वामी जी आप ऐसा कर दीजिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो क्या गॉड जनरल रहेगा, जनरली तो गॉड में क्या है, सब माने थे गॉड। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई, गॉड बहुत हो गया, अभी गॉड कौन है नाम मेरे को स्पेसिफाई करना है, कृष्णा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर इसको कर देंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस तो ये बन जाएगा ISKCON, एंड एसेंस वुड बी गॉन। तो इसीलिए हमें सोसाइटी का नाम ISKCON नहीं रखना, हमें रखना है ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सोसाइटी का नाम ये रहेगा जी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने फिर इसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ लोग बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में प्रचार क्यों करते हैं? उन्होंने बताया हमारी सोसाइटी का नाम नहीं है नेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी ने जो टर्म है ये श्री रूप गोस्वामी जी से ली, जहां पर श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में भक्ति के बारे में बोलते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता। कृष्ण भक्ति रस भाविता को, यानी कि भक्ति को एग्जीक्यूट करने से जो रस मिलता है कृष्ण के प्रति, वो कृष्ण भावना, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इस प्रकार से इसका नाम, राइट। तो इसीलिए सो दैट वे इसका नाम रखा गया, इसी के ऊपर आधारित प्रभुपाद जी ने रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये टर्म कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी ने श्री रूप गोस्वामी जी से लिया, राइट। तो ISKCON इज दैट
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इसमें हमको भी इंट्रोस्पेक्शन हमेशा करते रहनी है कि इस्कॉन की फुल फॉर्म कुछ इस तरह से हो सकती है, IS KC एंड ON ऑन। IS मतलब इज, KC मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, ON मतलब ऑन। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन और इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ। हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए, जब वो ऑफेंसेस करते हैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ हो जाती है। आप कौन सी सोसाइटी में? इस्कॉफ। आई एम इन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कॉफ, ऑफ। क्योंकि हम जो ऑफेंसेस करते हैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ हो जाती है, और फिर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो फेंस है, वी आर थ्रोन ऑफ द फेंस ऑफ भक्ति व्हेन वी आर ऑफेंसिव। पर हमें हमेशा रखना है इसको ऑन। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ और इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन, इस्कॉन। एक बार एक डिवोटी थे, वो थोड़े दुखी थे, उनको किसी ने प्रसाद नहीं पूछा था, बड़े दुखी थे। कह रहे अरे प्रभु, आई नो अबाउट इस्कॉन, व्हाट इज इस्कॉन? इस्कॉन मतलब किसका कौन? एंड ही वाज सेइंग दैट कि इस्कॉन मतलब किसका कौन। तभी जो है फिर उर्मिला माता जी आई, उनके हाथ में प्रसादम था, पराठे लेके आई थी माता जी। कहते मैं आप लोगों के लिए प्रसाद लेकर के आई हूँ। शी पर्सनली ब्रॉट प्रसादम फॉर अस। हम लोग सेवा के लिए जाने वाले थे और माता जी फिर हमको प्रसाद दिया। मैंने कहा एक बार दोबारा समझाना, क्या बताया तुमने? इस्कॉन मतलब किसका कौन? देखिए ये है किसका कौन। यहाँ सारे भक्त एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, सब मिलजुल करके यहाँ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। Once somebody told me, कहता है हमारे द्वारका मंदिर के बारे में, there was one devotee, कहता है आपको पता है इस्कॉन में क्या चल रहा है? मैंने कहा हरिनाम संकीर्तन चल रहा है और भगवद गीता भागवतम का प्रचार चल रहा है, प्रसाद वितरण चल रहा है। कहते देखिए आप नहीं समझ रहे हैं। मैंने कहा आप नहीं समझ रहे हैं, असल में यही चल रहा है। जो इस्कॉन में है वो यही कर रहे हैं, जो ऑफ में है वो कुछ हो सकता है कुछ और भी कर रहे हो, लेकिन जो ऑन में है वो तो ये कर रहे हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा, हरि कथा, हरि नाम, दैट्स इट। सो इसीलिए ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इस्कॉन इज वेरी वेरी स्पेशल। श्री प्रभुपाद कहा करते थे हमारी इस्कॉन सोसाइटी इट इज द रियल यूनाइटेड नेशंस, रियल यूनाइटेड नेशंस। भले ही यहां भाषा एक दूसरे की नहीं आती हो, लेकिन एक चीज हमारे बीच में कॉमन है, हरे कृष्णा। इवन अगर कोई चाइनीज डिवोटी मिल जाए जिसको इंग्लिश नहीं आती, एक चीज जानते हैं, हरे कृष्णा, यस हरे कृष्णा। So that which connects us this is this हरे कृष्णा। जब प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में थे तो लॉस एंजलिस से प्रभुपाद जी को जब इंडिया आना था तो सब डिवोटीज, इतना ज्यादा इंटेंस फीलिंग ऑफ सेपरेशन थी कि ना प्रभुपाद आप चले जाएंगे, आपके बिना भला हम कैसे रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब मैं इंडिया जाऊंगा, वृंदावन में होऊंगा, आई विल बी चैंटिंग हरे कृष्णा देयर, और आप लोग यहाँ लॉस एंजलिस में होंगे, यू विल चैंट हरे कृष्णा हियर। और फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र की जो वाइब्रेशन है ये पूरी पृथ्वी के चारों ओर रस्सी की तरह बंध जाएगी, और फिर हम भी बंध जाएंगे, आप भी बंध जाओगे, और इस तरह से विल बी टुगेदर, बाउंड टुगेदर बाय दिस रोप ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस तरह से हम सबको बांधता है ये हरे कृष्ण महामंत्र, साथ में जोड़ता है ये हरे कृष्ण महामंत्र। क्या सो इस तरह से जो इस्कॉन सोसाइटी है इट इज वेरी वेरी ट्रांसेंडेंटल। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने जब इसको एस्टैब्लिश किया तो फिर इसके फिर 7 पर्पसेस रखे कि ओके थ्रू दिस इस्कॉन हम लोग क्या करेंगे। तो इसका पहला पर्पस था टू सिस्टमैटिकली प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज एंड टू एजुकेट ऑल पीपल इन द टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इन ऑर्डर टू चेक द इंबैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ एंड टू अचीव द रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। तो सिस्टमैटिक तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान को देना। मैं शुरू में तो भगवद गीता भागवतम की क्लासेस रही हैं उस तरह से एजुकेशन में, लेकिन अब तो नाउ ये भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, भक्ति वेदांत, these kind of courses are coming, right? तो इसलिए सिस्टमैटिकली स्पिरिचुअल नॉलेज को देना। स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती तो लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं अल्टीमेटली। जैसे यहाँ न्यू वक्तास हैं, they can experience, they can understand कि जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं और जब फिलॉसफी सीखते हैं हमारा फेथ बढ़ता है, राइट? और जितने जो भक्त रेगुलरली भागवतम क्लास में आते रहते हैं, भगवद गीता क्लास में आते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, ऐसे भक्तों का फेथ खिलता रहता है। वाई? क्योंकि ये सिस्टमैटिक वे में नॉलेज को देना, इसको प्रोपोगेट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है वास्तव में। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा करेंगे तो वैल्यूज आएंगी, ऐसा करेंगे तो ये रियल यूनिटी आएगी, ऐसा करेंगे तो पीस इन द वर्ल्ड आएगी।
और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको ये बुक्स दी ताकि हम सिस्टमैटिकली इसका जो है इसको प्रोपेगेट। और प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री कोर्सेज के लिए अपने समय बोल दिया था दैट वी शुड गिव सिस्टमैटिक एजुकेशन. So this is the first purpose which we should all do, is systematic propaganda of the spiritual knowledge. And then second one, to propagate the consciousness of Krishna as it is revealed in the great scriptures of India, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita और Srimad Bhagavatam के ऊपर आधारित हमको कृष्ण भावना, भगवान के बारे में बताना. Scriptures, विशेष रूप से भगवद गीता एंड भागवतम. प्रभुपाद जी एक बार अमृतसर में थे तो वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर ऐसे चावल डुलाते हैं ना सब, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, डू लाइक दैट. तो प्रभुपाद जी ने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर इस तरह से चावल डुला रहे हैं. प्रभुपाद जी ने कहा श्रीमद् भागवतम शुड बी वर्शिप्ड लाइक दिस. श्रीमद् भागवतम की इतनी ऊंची स्थिति है, इट शुड बी वर्शिप्ड लाइक दिस. श्रीमद् भागवतम, सच एन अमेजिंग स्क्रिप्चर एक्चुअली. और प्रभुपाद जी ने कहा इफ somebody reads my श्रीमद् भागवतम, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य वाली है, प्रभुपाद ने कहा if somebody reads my श्रीमद् भागवतम he will be forced to become a pure devotee. अगर को सोचेंगे ना मैं भागवतम पढ़ूंगा लेकिन मैं शुद्ध भक्त नहीं बनूंगा, प्रभुपाद ने कहा यू जस्ट रीड माय श्रीमद् भागवतम यू विल बी फोर्स्ड टू बिकम अ प्योर डिवोटी. प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से भगवद गीता और भागवतम को दिया है. एक बार एक मायावादी था, उसने बोला, कहता है स्वामी जी मैंने आपकी भगवद गीता एज इट इज मैंने पढ़ के देखी, इट इज नॉट एज इट इज, इट इज नॉट एज इट इज. जहां पर श्लोक में कृष्ण के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है, वहां पर ट्रांसलेशन में भी आपने डाल दिया कृष्ण को, और वहां पर आपने उसके बाद परपोर्ट में भी डाल दिया आपने कृष्ण को. क्या आपकी भगवद गीता पे लिखा तो है भगवद गीता एज इट इज नॉट एज इट इज. प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी भगवद गीता में तो जिन श्लोकों में कृष्ण थे तुमने वहां से भी निकाल दिया उनको, तो मुझको कॉम्पनसेट करना पड़ा, उन श्लोकों में भी कृष्ण को डालना पड़ा जहां से तुम जहां पर नहीं भी है, बिकॉज ऑफ यू पीपल. और प्रभुपाद जी जानते हैं कि नंबर 1 के बदमाश लोग जो पैदा होते हैं ना, अल्टीमेटली ये लोग कलयुग में पैदा होते हैं. इनको सही रास्ते के अलावा बाकी सारे रास्ते नजर आते हैं, इनको सारे रास्ते नजर आते हैं. इसलिए चाहे ध्यान योग का चैप्टर हो तो उसमें परपोर्ट में आएगा, तो इसीलिए हमें ध्यान लगाना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ज्ञान योग का चैप्टर अगर आ जाए उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि बच्चों तू जाएगा कहां. ये तो हरे कृष्ण महामंत्र पर तो हरे कृष्ण महामंत्र, ये तो यामी 18 अध्याय हरे कृष्ण महामंत्र, तो कहां जाएगा. So Prabhupada is so expert, इतने जबरदस्त तरीके से दिया है प्रभुपाद ने. My God, scriptures, especially भगवद गीता, भागवतम, amazing. और इन शास्त्रों को पढ़ने का बहुत लाभ है. ये करते हैं कि ना हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है संसार में जीने की, ये उसको ऐसा पूरा पंचर मार कर रख देते हैं. जैसे अगर कोई मूवी देखने के लिए कर जाता है तो मूवी में क्या है, नए नए सीन आएंगे तो ना एंटिसिपेशन रहती है, अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा. लेकिन ना साथ में अगर एक दोस्त बैठा हो जिसने पहले से पिक्चर देखी हुई है, कहता है अबे बताओ अभी हीरो हालांकि मार रहा है इसको, अभी पिटेगा लेकिन ये, कहता है बीच में को बोल रहा है यार तू सारा मजा खराब कर रहा है यार तू. और फिर थोड़ी और स्टोरी बड़ी, फिर कहता है अभी ऐसा हो तो रहा है लेकिन पता अल्टीमेटली किलर कौन निकलेगा सारे सस्पेंस में, ये जो चौकीदार है ना ये किलर निकलेगा. कहता तूने यार सारा सस्पेंस खत्म कर दिया यार, सारी मूवी का मजा खराब कर दिया तूने. ये स्क्रिप्चर जो है, ये भगवद गीता भागवत हमारे साथ बिल्कुल ये काम करते हैं. हमारा क्या संसार को लेकर के बड़ा एक्साइटमेंट है कि ना अब अगला सीन क्या होगा, बाकी क्या होगा, ऐसा क्या होगा. कहते हैं बेटा दुख खा ले मौत शाश्वतम है, और कुछ नहीं, पिटाई बड़ा और कुछ नहीं है भाई. यार सारा मतलब तूने मजा खराब कर दिया यार. ना तेषु रमते बुधा, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं रमता है इसके अंदर. कहता है यही संस्पर्शा भोगा, ये वही है बता रहा हूँ यार. मतलब सारी एक्साइटमेंट हमारी भौतिक जगत में जीने की पूरा पंचर मार के रख देते हैं स्क्रिप्चर्स. भगवद गीता की दृष्टि से, भागवतम की दृष्टि से आप संसार जीना शुरू करो, कहता अरे क्या मतलब घोंचू जगह है एकदम, ये यूजलेस. जैसे प्रभुपाद ने कहा अगर भगवान के बारे में ज्ञान भी दिया जाएगा तो ज्ञान इट मस्ट बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता एंड भागवतम. वन समबडी आस्क्ड मी कि आपने इस्कॉन को क्यों चुना, आप समझदार हो और भी कई सोसाइटी है. हमने कहा हम घाट घाट का पानी पी करके आए, फाइनली हरे कृष्ण की नदी में पानी से हमारे गला की प्यास शांत हुई है. और एक और बड़ा कारण ये है वो क्यों शांत हुई है, रीजन बीइंग इस्कॉन में श्री प्रभुपाद जी ने अपनी कोई पोथी नहीं दी, ही जस्ट गेव भगवद गीता एंड भागवत इन सच अ ब्यूटीफुल वे. तो इसीलिए शास्त्रों का इतना सुंदर प्रेजेंटेशन मिलता है हमको इस्कॉन में. आई हैव बीन टू मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इवन बिफोर इस्कॉन, इवन आफ्टर कमिंग टू इस्कॉन आल्सो फॉर सम टाइम. जो हमारा धन है ना वो है हमारी बुक्स, इसलिए हम सबको बुक्स पढ़नी चाहिए. सन 2000 में हम जब नए भक्त थे
तो उस वक्त ना नजारा कुछ और हुआ करता, उस वक्त डिवोटीज मिला करते थे, अपने हाथ में बुक लेकर, किसी हाथ में थी टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य, किसी के हाथ में हुआ करती थी टीचिंग द लॉर्ड कपिल, और कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, एंड देयर हैवी ड्यूटी डिस्कशंस। आज ये सीन थोड़े कम होते जा रहे हैं क्योंकि आजकल हम बिजी में हो गए हैं इसके चक्कर में। ये स्मार्ट हो लिया, हमारी स्मार्टनेस निकल गई सारी, तो व्हाट्सएप पे तो उंगली घूम जाती है, लेकिन हम किताब नहीं पढ़ते, तो हमको ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सो वी शुड प्रोपगेट द कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा गॉड एज इट इज रिवील्ड इन द ग्रेट स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया, भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। थर्ड इज टू ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर विद ईच अदर एंड नियरर टू कृष्णा, द प्राइम एंटिटी, thus developing the idea within the members and humanity at large that each soul is part and parcel of the quality of Godhead. तो इस तरह से हम सब पूरा समाज है एक साथ कैसे हो पाएगा, जब हम ये देख पाएंगे कि सब के सब भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और इस तरह से यूनिटी लेकर के आना। कहते हिंदी चीनी भाई भाई, ये आज तक स्लोगन सक्सेसफुल नहीं हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई आज तक सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने देहात्म बुद्धि के आधार पर कर दिया, ये हिंदी है और वो चीनी है और बाकी नमक है, इस तरह से हमने अलग अलग कर दिया, सारा अलग अलग हो लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कभी नहीं हो पाए भाई भाई। क्यों नहीं हो पाए भाई भाई? क्योंकि हमने कर दिया ये हिंदू है, क्योंकि जब आत्मा हिंदू परिवार में जन्म लेती तो हिंदू, मुसलमान परिवार में शरीर ले लिया तो मुस्लिम। शरीर के आधार पे कभी यूनिटी आने वाली नहीं है। तो हिंदी चीनी भी कभी भाई भाई नहीं होने वाले, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी भाई भाई होने वाले। लेकिन हाँ, भगवान श्री कृष्ण के हम सब अंश हैं, उनकी तटस्थ शक्ति के अंश है। अगर ये लेकर के चलेंगे देन वी कैन हैव यूनिटी। तो यूनिवर्सल अगर ब्रदरहुड चाहिए तो उसमें कॉमन फादरहुड होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस बात को एस्टैब्लिश किया, दैट ब्रिंग द यूनिटी हाउ, बाय नोइंग दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज द सोल। जैसा आइंद्र प्रभु शेयर कर रहे थे कि वो कैसे कन्विंस हुए अबाउट द हरे कृष्णा डिवोटीज। जो नए नए आए तो उनको किसी ने बुक दी थी, सिविलाइजेशन ऑफ ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस ऑफ सिविलाइजेशन। तो उसमें उन्होंने पढ़ा, वी आर नॉट द बॉडी वी आर सोल। ये तो बहुत ही हैवी बात लिख दी है, तो कि हम लोग ये है ही नहीं जो दिखते हैं, हम लोग कुछ और है जो कि अंदर है। ये तो बहुत ही मतलब पचाना बहुत मुश्किल है इस बात को। तो प्रभु जी जो है हमारे एक इस्कॉन टेम्पल में गए, तो वहां पर एक माता जी थी, माता जी ना शी वाज कुकिंग प्रसादम। तो प्रसादम जब रेडी हो गया भोग लगा करके, तो माता जी ने कहा, ओ यू लवली सोल्स ऑफ कृष्णा, कम एंड हैव प्रसादम। तो आइंदर वो इस बात से बहुत कन्विंस हुए, कहते हैं देखो जो चीज मेरे को हजम करने दिक्कत जा रही है, दिस माता जी इज लिविंग दैट फिलॉसफी। यार ये ओ यू लवली सोल्स ऑफ कृष्णा, ओ कृष्ण की प्यारी आत्माओं, आओ प्रसाद पालो। अरे क्या बात है ये। सो दिस पॉइंट कि हम शरीर में हम आत्मा है, सो स्ट्राइकिंग। तो प्रभुपाद ने कहा इस तरह से हम यूनिटी ला सकते हैं। थर्ड वन, फोर्थ वन, टू टीच एंड एनकरेज द संकीर्तन मूवमेंट, कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ गॉड एज रिवील्ड इन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करना, हरिनाम का। और प्रभुपाद जी ने बहुत दक्षता के साथ किया इसको। हमने आज कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र आइडली शुड बी देयर, पर वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन होता नहीं है। सब हरि हरि बोल मे बी देयर, बट वह हरि बोल ही है, पर हरे कृष्ण महामंत्र है नहीं। और प्रभुपाद जी ने इस बात पे इतना स्ट्रेस किया, माय गॉड। प्रभुपाद जी के पास अगर मान लो अगर कोई टेंशन लेकर के गया, कोई मीटिंग में गया कि प्रभुपाद ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आई थिंक प्रभुपाद ने जस्ट चैंट हरे कृष्णा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। प्रभुपाद जी का लेक्चर दे, प्रभुपाद जी ने कहा, इफ somebody can stay as brahmachari for 25 years, the intelligence becomes so ripened that he can understand anything from scriptural point of view. शास्त्रों का कुछ भी व्यक्ति समझ सकता है। अगर 25 साल तक कोई ब्रह्मचारी रह ले, अब सामने बैठे कौन हिप्पी लोग, कहते 25 साल, हमने 15 साल की उम्र में क्या क्या कर दिया हमने, तो अरे सबके सर झुक गए, मुंह छुपा लिए सबने। प्रभुपाद जी का, बट एनीवेज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा एवरीथिंग बिकम्स ऑलराइट। तो प्रभुपाद जी हर चीज इसका सॉल्यूशन नहीं दिया करते थे, राइट। प्रभुपाद जी मीटिंग से लिखा करते थे, इंस्टेड ऑफ हैविंग मीटिंग्स एंड इन द मीटिंग सो मेनी रेजोल्यूशंस एंड रेवोल्यूशंस एंड डिसोल्यूशंस एंड एट द एंड नो सॉल्यूशन, दे शुड बी चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, दैट्स इट। तो प्रभुपाद जी ने इसका जो है प्रोपेगेंडा किया हरि नाम संकीर्तन का। चाहे जुहू टेम्पल था, जुहू टेम्पल आप जानते हैं, जितना बड़ा टेम्पल होता है उतना ही वो एडवेंचरस होता है। कैसे एडवेंचरस होता है वो आप सब जानते हैं, राइट। तो ऐसे जुहू टेम्पल संभालने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी गिरिराज महाराज को, तो गिरिराज महाराज को ना प्रभुपाद जी ने बोला था कि ना संडे को 24 आवर हरिनाम संकीर्तन रखा करो मंदिर में। तो प्रभुपाद जी जाने के बाद जो है बड़ी समस्या है, भाई जुहू टेम्पल है, हेवन ऑन अर्थ, हेवन में तो फिर हेवन, इट इज वेरी हेवनली प्लेस, मोर देन हेवन।
तो तब उनको याद आया कि ना प्रभुपाद जी ने बोला था संडे को जो है 24 आवर हरिनाम होना चाहिए। हाँ याद आया मेरे को। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ना संडे को 24 आवर हरिनाम हुआ करेगा। तो कभी कोई जाया करता था गिरिराज महाराज के पास प्रॉब्लम लेकर के, महाराज आई गॉट अ प्रॉब्लम, यू नो आई गॉट अ प्रॉब्लम। महाराज कहते या आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। हम लोग मंडे को मिले, मंडे को मिले चलेगा क्या? ठीक है, मंडे को मैं तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन पक्का कर दूंगा, गिरिराज महाराज बोलते थे। फिर वो जब जाने वाला था तो उसको कहते थे लेकिन हाँ सुनो वो संडे को ना वो हरिनाम संकीर्तन भी है, आना जरूर ना, ठीक है? कहते हाँ आई विल कम बट मंडे आई वांट माय सोल्यूशन। संडे को हरिनाम संकीर्तन में बैठ करके पूरा धुल के मक्खन मलाई हो जाता था, मंडे को आते ही नहीं थे। 80-90% प्रॉब्लम तो गिरिराज महाराज ने ऐसे सॉल्व कर दी। कैन आई सी यू ऑन मंडे? अच्छा ऑन संडे ना देयर इज हरिनाम संकीर्तन, हाँ आना जरूर। ऐसे करते करते 90% प्रॉब्लम जो थी जुहू टेंपल की रिजॉल्व। तो हरिनाम वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने इसको इग्नोर किया वो गया। एक बार ब्रह्मानंद स्वामी, लेटर ऑन ही बिकेम प्रभु, तो उनकी सेवा कर रहे थे। अभी जो भक्ति विनोद महाराज उनका नाम पहले था, आई फॉरगॉट हिज नेम, जो ब्रह्मचारी थे, सो ही वाज सर्विंग ब्रह्मानंद प्रभु जी। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने लेक्चर दिया, यानी कि लेक्चर की अगर कोई 16 माला का जप करता है तो उसका पतन नहीं होगा कभी। और इतना जबरदस्त लेक्चर दिया उन्होंने, हैवी ड्यूटी जबरदस्त हरिनाम के ऊपर। तो जो प्रभु जी थे उन्होंने जो उनकी सेवा कर रहे थे, तो प्रभु जी ने कहा कि उन्होंने कहा प्रभु जी लेकिन आप इतना सॉलिड लेक्चर दिया, मतलब मेरा फेथ बढ़ गया हरिनाम में, तो मैं जानना चाहता हूं लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड दो यू आर स्टिल अ प्योर डिवोटी। तो प्रभु जी ने कहा बिकॉज आई वॉज नॉट चैंटिंग माई 16 राउंड्स, दैट्स व्हाई इट हैपेंड टू मी। तो पतन का कारण क्या होता है? जब हम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते। एक बार नहीं किया, कहते कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, अबे कुछ नहीं होता, कहीं 12वीं कर लो, 10वीं कर लो, सो जाओ, कुछ नहीं होता। अगला दिन 9 माला, सो गया, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। यानी बिना 16 माला के भी गाड़ी तो चल जाती है। ये है माया का ट्रैप। So प्रभुपाद जी बोला करते थे, somebody is not chanting once his 16 rounds, he is in a diseased condition of spiritual life. Right? तो इसीलिए हरिनाम का प्रचार करना, ये this is one more one. Fifth one, to erect for the members of the society at large a holy place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Krishna. तो जो आचार्यों को कार्य मिला था कि जो लीला सरिजन उनको उजागर करना, तो वही कार्य आगे प्रभुपाद जी ने बढ़ाया। किस तरह से? जो लीला सरिजन उनको उजागर किया, उनमें कंस्ट्रक्शंस कराई, और विशेष रूप से इसमें श्री जयप्रताप का महाराज को जो सेवा दी श्री प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने बोला आई हैव गिवन यू किंगडम ऑफ गॉड, नाउ डेवलप इट। और जयप्रताप महाराज और उनके शिष्यों ने मिलकर के माय गॉड दे हैव डन ट्रेमेंडस सेवा। तो इस प्रकार से जो लीला सलीस है उनका पता लगाना, और कई सारी लीला सलीस जिनके बारे में अभी जिनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुई है, जो बहुत पुराने कोई एक्सपर्ट हैं सिर्फ वो जानते हैं कि इस जगह पे लीला हुई थी, पर वहां पर अभी जो है वहां पर वो कंस्ट्रक्शन होनी बाकी है ताकि इट बिकम्स अ मॉन्यूमेंटल प्लेस। Okay, 6.1 to bring the members closer together for purpose of teaching a simpler, more natural way of life. सरल जीवन उच्च विचार। तो सरल जीवन प्रभुपाद चाहते थे, और सरल जीवन जीने के लिए जो बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो आएगा वर्णाश्रम के द्वारा। ऐसे आज हमारे कई गृहस्थ डिवोटीज हैं, बेचारे सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। सुबह 12 माला की थी, रात को भी 4-5 माला वो पूरी करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी घर की जिम्मेदारी होती है, एंड देन दैट्स इट। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वीकडेज की माला पेंडिंग होती है, फिर वो वीकेंड पे कंप्लीट करते हैं। वीकेंड पे जो है वो करेंगे से 35 माला। कहते 35 माला क्यों कर रहे हैं आप? कहते वो मेरी 19 माला पिछले हफ्ते की पेंडिंग है, बिकॉज सो मच वर्क। तो ये जो लाइफस्टाइल है शहरों का इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे कर पाएंगे? वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए सिंपलर वे ऑफ लाइफ हैज टू बी देयर, और सिंपलर वे ऑफ लाइफ का प्लेटफॉर्म है वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम मिनिस्ट्री भी आज है, आज इस्कॉन के अंदर। तो निश्चित रूप से व्हेन द लाइफ विल बी सिंपलर, तो गृहस्थास हो, ब्रह्मचारीज हो, यू नो ब्रह्मचारीज लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटिंग। ब्रह्मचारी बेचारे देखो ना कितने आते हैं यहाँ पर, कितने घूम जाते हैं, कहाँ घूम जाते हैं, माय गॉड। मैं एक बार गुड़गांव जा रहा था, देवास वन ब्रह्मचारी, थोड़ा गांव की बैकग्राउंड से था। गुड़गांव की उसने बिल्डिंग वगैरह देखी, कहा था प्रभु जी ये लोग तो यहाँ लोग बहुत खुश रहते होंगे ना। ऊंची बिल्डिंग थी, ग्लासी थी उसकी, और ग्लास में वो 6ठे फ्लोर पे खड़े हुए, ऐसे जेब में हाथ डाल कर खड़े हुए थे कुछ लोग।
तो उनको देख लिया उसने, गांव का सीधा साधा आदमी, भगत हमारा। कहते ये लोग तो यहाँ खूब मजा करते होंगे। मैंने कहा बच्चे मैं वहीं से आ रहा हूँ, नर्क बसता है उसके अंदर वहां पर, हेल। मैं नर्क से आ रहा हूँ। वो दिख रहे हैं, वो ऐसे खड़े हो ना जिम में हाथ डाल करके, वो पिट के आए, अभी थोड़ी सांस लेने के लिए आए यहाँ पर अभी। लेकिन ये बेचारे अभी जो सरल ब्रह्मचारी बेचारा जो सरल है, इसलिए जो गांव से आते हैं ना बेचारे, उसको लगा ये भी गांव है, गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर गांव छोड़ करके सब कुछ है। इट्स अ बैड गांव, नॉट अ गांव। तो इसी सो दैट फेज क्या है, एक सिंपलर वे ऑफ लाइफ ब्रह्मचारी को भी चाहिए। वन ऑफ द रीजन आज हम देखते हैं डिवोटी सर्कल में पढ़ाई लिखाई कम क्यों हो गई, इसका कारण ये भी है कि ना अब बहुत रजस है एनवायरमेंट में, सो मच रजस। सो सिंपलर वे ऑफ लाइफ, सो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्त ऐसे जीवन जिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अभी क्या है, सिंपली लिविंग, हार्डली थिंकिंग। पर हमें करना है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, दैट इज व्हाट वी शुड डू। तो ये एक और पर्पस था इस्कॉन का। और साथ और पर्पस है, विद द व्यू टुवर्ड्स अचीविंग द अफोरमेंशन्ड purposes to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings. तो periodicals यानी कि बार बार छपने वाले जैसे magazines हैं, इस तरह से ये छपने चाहिए, books हैं ये छपनी चाहिए। बुक्स जो है हमारी ताकत है, दे शुड बी रेगुलरली बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार किसी ने बोला कि स्वामी जी आप इतना बोलते हैं बुक्स 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 बुक्स, क्या चाहते हैं आप लोग, आप कि सारे बुकवर्म बन जाए, किताबी कीड़े बन जाए सब? प्रभुपाद जी ने कहा देखो मेरी बुक्स पढ़ के अगर वो किताबी कीड़े बने तो अच्छा है, नहीं तो अगले जीवन में मल के कीड़े बनेंगे। नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू बिकम बुकवर्म और स्टूल वर्म। नहीं स्वामी जी बुकवर्म ही अच्छा है। So these books they are so important actually, तो इसीलिए इनकी पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी ने रात को जग जग करके ये बुक्स दिए हमको, इसलिए कहीं पढ़ने के लिए इनको जगना ही पड़े ना, अगर थोड़ी नींद कम करनी पड़े, नींद के झोंके आ रहे हो अगर धुम 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 तो बंद करते हैं, सो जाते हैं यार। खड़े होके पढ़े, पानी पी ले, खड़े होके पढ़े। अगर ऐसा झुमरू बने हुए कि खड़े खड़े भी अगर झूम रहे किताब लेके अगर, तो चलते हुए पढ़े। और अगर चलते चलते भी अगर झूम रहे हैं तो फिर दौड़ते हुए मत पढ़े, सो जाएं, आधे पौने घंटे बाद उठे फिर पढ़े। हाँ पर पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने तपस्या कर करके हमको ये बुक्स दी हैं, पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है ऑफ कोर्स। प्रभुपाद जी थे एक बार डिवोटी था, उसने यहाँ तक स्टैक बनाया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा था। प्रभुपाद जी मिल गए, उसमें से बुक निकाली, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभुपाद ने कहा क्या दिया है इसके अंदर? कहता प्रभुपाद आई डोंट नो, मैं तो सिर्फ बांटता हूं इनको। प्रभुपाद ने कहा पहले ये बुक्स मैंने भक्तों के लिए लिखी हैं कि भक्त इनको पढ़े, उसके बाद जाकर के इनको बांटे। जब भक्त पढ़ते नहीं है ना, फिर वो जब डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं ना, इतनी उदासी के साथ करते हैं कि सामने वाले में अगर उत्साह हो भी वो मर जाएगा उसका। ऐसे जाएंगे, ले लो गीता, ले लो आप ले लो गीता, ले लो गीता ले लो। ऐसे मुरझाए चेहरे के साथ मरगिल्ले होके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ले लो गीता, ले लो आप ले लो कहते अच्छा इसको लेके क्या होगा? कहते आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। कहते अच्छा ऐसी खुशियां आएंगी जैसे तेरे चेहरे पे आई हुई है? कभी ना लूं मैं, भाग जाए ऐसे, क्योंकि पढ़ता ही नहीं, तो बुक पढ़ता ही नहीं है, फिर जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसे मुरझाए चेहरे के साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्लीज ले लो यार, सुबह से कर रहा हूं, कुछ नहीं भाई, आप ले लो। अरे जब पढ़ा होगा तो पता होगा इसके अंदर कितना अमृत भरा है, तो देंगे, अरे लीजिए आप लीजिए, अरे देकर, अरे खोल कर देखिए, अरे जब पढ़ा ही नहीं होगा तो मरगिले तरीके से करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर करते करते सूख जाते हैं, उसमें 10-20 रुपए का, फिर बाद में अनार का जूस पी लेते हैं। क्या करें प्रभु जी, प्यास लग जाती है। So these were the 7 purposes of ISKCON, right? और ISKCON of course, तो ये 7 purposes थे प्रभुपाद जी के, जो प्रभुपाद जी ने दिए। तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है, तो ISKCON की खासियत क्या है? Why it will sustain, ये हमेशा चलती रहेगी। इसका बहुत बड़ा कारण है कि ISKCON जो है कंटेम्परराइज करती है। कंटेम्परराइज नहीं, वर्तमानकालीन जो स्थिति है उसके हिसाब से चलती है। आप में कितने लोगों ने बाकरी खाई है? बकरी नहीं बोल रहा मैं, बाकरी।
बाघ बकरी चाय भी नहीं बोला, बाकरी, बाकरी है कुछ लोगों ने आई। अच्छा पिज्जा सुना, पिज्जा, पिज्जा हाथ खड़ा करो। हाँ, आपको बता दें बाकरी और पिज्जा में क्या अंतर है और क्या समानता है। पिज्जा जो है वो इटालियन अमेरिकन वर्जन है बाकरी का। एक थिक पराठा जो बनता है, जो डीप फ्राई पराठा होता है, उस पर सब्जियां और घी डाला जाता है ना, उसकी टॉपिंग होती है, उसको बोलते हैं बाकरी, और किसान खाते हैं, बड़ी ताकत मिलती है इससे। इसी का ही डाइल्यूटेड और मैदा वर्जन है पिज्जा। लेकिन पिज्जा सबको पता है, राइट, बाकरी नहीं पता। तो ये उसका कंटेम्परेरी वर्जन है। उसी तरह से हमारे वैदिक सिद्धांत को कंटेम्परेरी स्टाइल में इतने सुंदर तरीके से दिया, उसी बाकरी को, उसी वैदिक एजुकेशन को प्रभुपाद जी ने, कि सबने उसको एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इस्कॉन जब कहीं जाता है, बताता है, सुनाता है किसी को, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज मर्सी फ्लोइंग। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, और हमारी स्ट्रेंथ है हमारी साधना, हमारी स्ट्रेंथ है हमारे सेल्फलेस गृहस्थ भक्तस, हमारे डेडिकेटेड एंथुसियास्टिक ब्रह्मचारीज, और हमारे स्पिरिचुअली एडवांस सन्यासीज। ये हमारी ताकत है। और हमारी ताकत है हमारी फिलॉसफी। प्रभुपाद जी से पूछा, कहते स्वामी जी, व्हाई डू यू ऑलवेज वॉक विद योर हेड रेज्ड? प्रभुपाद जी ऐसे चला करते थे। प्रभुपाद ने कहा, आई वॉक लाइक दिस बिकॉज आवर फिलॉसफी इज हाईएस्ट। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, बट हायर देन द हाईएस्ट फिलॉसफी इज द प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। तो इसको जीना भी ऐसा नहीं कि फिलॉसफी जो है यहां व्यासासन से लेक्चर देख करके, ताली इकट्ठे करके पतली गली से निकल लो, बस। इसको जीना, इसको जिंदगी में अप्लाई करना, ये बहुत जरूरी है, और ये हमारी ताकत है। और हमारा प्रीचिंग मूड, यह भी हमारी ताकत है। प्रभुपाद जी ने पूछा कि आपके जाने के बाद आपके फॉलोअर्स का क्या होगा? प्रभुपाद जी ने कहा, सारे हिप्पी बन जाएंगे अगर प्रचार नहीं करेंगे तो प्रचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैथोलिक क्रिश्चियन से बोलते हैं, इफ यू आर नॉट प्रीचिंग यू आर नॉट अ कैथोलिक। सिमिलरली हमें भी अपने लिए मान के चलना चाहिए, अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो हम इस्कॉन के डिवोटी नहीं है। हम सबको प्रचार करना चाहिए, ये नहीं, चाहे 1-to-1 हो, चाहे क्लासेस के रूप में, बट वी शुड ऑल डू। इनफैक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी पता है हाउ डू दे कॉम्प्लीमेंट अस? एक क्रिश्चियन प्रीचर जो है उसने कहा एक बार, कहता है, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट इज कमिंग फ्रॉम इविल, इंक्लूडिंग दोज हरे कृष्णास हु हैव ऑल द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस ऑन द प्लैनेट। इस दुनिया में जीसस क्राइस्ट के अलावा जो कुछ भी आ रहा है वो शैतान से आ रहा है। इवन वो हरे कृष्णा वाले भी शैतान से आ रहे हैं, जिनके पास सारे सवालों के सारे जवाब हैं। सारे सवालों के सारे जवाब कैसे पता लगता है कि इस्कॉन के पास है? व्हेन वी डू प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट। इसलिए प्रचार हमें करना है और इस इंस्टीट्यूशन को साथ में रखना है, और ये हमारे प्रेम के अभिव्यक्ति। प्रभुपाद जी ने बोला, योर लव फॉर मी वुड बी नोन बाय हाउ नाइसली यू कोऑपरेट फॉर मी, हाउ नाइसली यू कोऑपरेट टू कीप द इंस्टीट्यूशन टुगेदर। तो कोऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ईगो को किनारे करना पड़ता है, और ईगो बड़ी भारी होती है, हिलाना बड़ा, इसको बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको हमें हिलाना होगा अगर हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। और हम कोऑपरेट करेंगे, दिस इज द वे वी लव श्रील प्रभुपाद। और जितना कोऑपरेट करेंगे ना प्रभु, लाइफ इतनी मक्खन मलाई और आनंद से भर जाती है, बहुत अच्छा लगता है कोऑपरेट करके। एक बार कभी करके देखिए, जो अपनी मनचाही चीज है वो सैक्रिफाइस करिए किसी और की खुशी के लिए, अच्छा लगता है। ये चंदन होता है, चंदन प्रभुपाद जी को लगाते हैं ना, चुपके माथे पे लगा रहे होते हैं, राइट। उसके बाद इस भक्त के खुद के हाथ से खुशबू आती है, जानते क्यों? क्योंकि इसने सबको चंदन लगाया। इन दिस वे व्हेन वी कोऑपरेट विद एवरीवन, उस कोऑपरेशन में इतना आनंद है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम अपनी लाइफ को किनारे करते हैं, अपने कंफर्ट को किनारे करते हैं दूसरे भक्त को सुविधा देने के लिए। एंड दिस वे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, जो इस्कॉन मूवमेंट है, इट विल ग्रो, इट इज स्टिल ग्रोइंग, इट विल गो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कैसे? व्हेन वी कोऑपरेट, एंड दिस इज हाउ वी लव, वी एक्सप्रेस आवर लव फॉर श्रील प्रभुपाद। तो हम इस्कॉन में आए हैं 3 काम करने के लिए, ये 3 काम करते रहेंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे। चैंटिंग हरे कृष्णा अटेंटिवली, मेरे पीछे बोलिए, चैंटिंग हरे कृष्णा अटेंटिवली, preaching Hare Krishna vigorously, and loving Hare Krishna devotees unconditionally. बस अब ये 3 काम करेंगे ना, ऐसी मक्खन मलाई जिंदगी हो जाएगी आपको। मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ, अरे क्या बात है, वेरी गुड। तो ये 3 काम करेंगे, हम लोग हमेशा खुश रहेंगे। फिर हमारे पास पावर पोस्ट पोजीशन हो चाहे ना हो, चाहे मैं स्त्री हूं चाहे पुरुष हूं, चाहे मैं बड़ा डिवोटी हूं चाहे मैं छोटा डिवोटी हूं, चाहे मैं अंदर का डिवोटी हूं बाहर का डिवोटी हूं, ये 3 काम जो कर रहा है, चैंटिंग हरे कृष्णा अटेंटिवली, प्रीचिंग हरे कृष्णा विगरसली, एंड लविंग हरे कृष्णा डिवोटीज अनकंडीशनली, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। तो ये शुद्ध भक्ति का सूत्र है, इसको अपना लीजिए और आनंद में जीवन बिताइए। श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन एस्टैब्लिशमेंट की, इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन की
ताई गो प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा टाइम आगे ले लिया। आई एम सॉरी ब्रो जी। लेट्स हैव सम स्पेशल कमेंट फ्रॉम जीता मित्र जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भक्तों को आपने बहुत हर्षित किया और बहुत विस्मित किया। और प्रभुपाद के बारे में ये पहले से भविष्यवाणी थी कि जब 70 साल की अवस्था के होंगे तब ये ऐसा घर बनाएंगे जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। तो प्रभुपाद ने पहले लीग ऑफ डिवोटी बनाया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि पहले से उनकी जन्म कुंडली में लिखा था कि 70 साल की अवस्था में ही ये कार्य होगा। तो जब 13 जुलाई थी, 13 जुलाई 1966, तो प्रभुपाद 70 और 71 के बीच में थे। तो जब प्रभुपाद ने ये बनाया तो ये सफल हुआ, और प्रभुपाद को पता था उनकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है। तो उस समय उन्होंने मतलब कैसे लोगों के साथ प्रारंभ किया। प्रभुपाद बहुत चतुर हैं, जैसे बताइए जय कृष्ण भक्त बड़े चतुर है ना, तो बहुत चतुर थे। तो प्रभुपाद ने इसकी बताई नहीं उनको। जो हिप्पी लोग आते थे उनके पास में, कोई भी दीक्षित भक्त नहीं था उस समय, सब हिप्पी लोग थे। और उनका भी जो है कुछ नियमित मतलब आना जाना नहीं था कि प्रभुपाद के साथ में सहयोग करें और नियमित रूप से कुछ सेवा लें या कोई जिम्मेदारी लें, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो भी प्रभुपाद ने अपनी योजना केवल उनको गोल्ड स्मिथ है ना, गोल्ड स्मिथ वकील, तो उनको जो है केवल ये बताया था कि आप जो है उस समय ये सब पत्रा लेकर के आना। और प्रभुपाद ने गीता का क्लास दिया, रोज की तरह गीता का क्लास दिया। और कुछ जो है वकील के दृष्टि से मतलब कुछ बताया कि जो वकील लोग हैं कानून को किस तरह से शब्दों को जो है मतलब प्रयोग करके, शब्दों का अर्थ निकाल करके कानून को बदल डालते हैं। तो इसी प्रकार से गीता के भी जो है लोग हैं, जो कई तरह के वकील हैं, जो गीता के शब्दों को जो है अर्थ निकाल करके और अनर्थ कर देते हैं, गीता का अनर्थ कर देते हैं। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि हमारे बीच में एक वकील हैं, तो आप कुछ प्रश्न करिए। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा आप कुछ प्रश्न कर सकते हैं। प्रभुपाद की मतलब जो योजना थी वो बड़ी जो है मतलब सुनियोजित योजना थी। और वो जो खड़े हो गए तो उन्होंने जो है मतलब वो पत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जो चिट्ठा था कि भाई ये जो है पंजीकरण होना है, इसका ये है, हमको ट्रस्टी चाहिए। तो प्रभुपाद ने मतलब ये नहीं कहा कि आप मतलब किसी को कि भाई करोगे या नहीं करोगे, हर कोई पीछे हट जाता, क्या करें हम, कुछ नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पर आते हैं कुछ मनोरंजन के लिए आते हैं, अपनी इच्छा से कभी आते कभी नहीं आते। प्रभुपाद यहाँ तो सब ट्रस्टी बैठे हुए हैं, आप ले लो साइन, साइन ले लो। इस तरह से प्रभुपाद ने मतलब वो कर दिया जिसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग है, जो भी हो मतलब सम्मोहन, एक प्रकार सम्मोहन कर दिया। तो सब लोग उनको फिर लगा कि भाई हमारा कुछ इसमें योगदान तो है ही नहीं, ये हमारे सिग्नेचर से अगर प्रभुपाद की संस्था अगर आगे बढ़ रही है तो हमारा क्या नुकसान है, चलो सिग्नेचर ही तो करना है, कर देते हैं सिग्नेचर। तो प्रभुपाद ने मतलब कोई भी उनके ऊपर नियम नहीं ला दे, कोई जिम्मेदारी नहीं ला दी कि भाई आपकी कोई जिम्मेदारी है, ट्रस्टी आप बन जाए, अपना नाम दे दिए, अपना एड्रेस दे दीजिए। तो उन्होंने सच तो अच्छी बात है भाई, स्वामी जी के प्रति हमारी भी सहानुभूति है, हमें कुछ जिम्मेदारी नहीं उठानी, कोई भार हमें नहीं उठाना है, केवल साइन करना है और काम चल जाए तो अच्छी बात है। तो इस तरह से देखिए प्रभुपाद का कितना विश्वास था कि उस समय एक भी दीक्षित भक्त नहीं। और संस्था का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में ये जो है मतलब काम हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय।